Good morning, dear students. How are you? Today I am going to teach you last part of your fifth lesson, legislature. So let us begin today from what do the committees of parliament do? What do the committees of parliament do? पार्लियामेंट की कमेटी क्या काम करती हैं? समितियाँ मतलब क्या काम करती हैं? A significant feature of the legislative process is the appointment of committees for various legislative purposes. These committees play a vital role not merely in lawmaking but also in the day-to-day business of the House. Since the Parliament meets only during session, it has only limited time at its disposal. The making of law, for instance, requires a deep study of the issue under consideration. This is in turn demands more attention and time. Similarly, there are other important functions also, like studying the demands for grants made by the various ministers, looking into expenditure incurred by various departments, investigating cases of corruption, etc. Parliamentary committees perform such functions since 1983. India has developed a system of parliamentary standing committees. There are over 20 such department-related committees. Standing committees supervise the work of various departments, their budget, their expenditure and bills that come up in the House relating to the department. What do the committees of the parliament do? यानी कि पार्लियामेंट की जो समितियां हैं, संसद की जो समिति है, वो क्या काम करती हैं? विभिन्न जो कानून संबंधी कार्य होते हैं उसके लिए समितियों का गठन संसद के कामकाज को देखने के लिए किया जाता है और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका। ये समितियां केवल कानून बनाने में ही नहीं बल्कि सदन के दैनिक जो काम होते हैं, डेली के जो काम, रूटीन के जो काम होते हैं, उनमें भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। हालांकि जो संसद है वो केवल अपने अधिवेशन के दौरान ही बैठती है, इसलिए उनके पास बहुत ज़्यादा सीमित समय होता है, बहुत यानी अत्यंत सीमित समय होते हैं किसी कानून को बनाने के लिए। उससे जुड़े विषय का बहुत गहरा अध्ययन करना पड़ता है, ध्यान से उसको समझना पड़ता है। इसके लिए उस पर ज़्यादा ध्यान और समय देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा और भी बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे अलग अलग मंत्रालयों की अनुदान की मांगों का अध्ययन करना, उनको देखना, उनको समझना, विभिन्न विभागों के द्वारा किए गए खर्चों की जांच करना, भ्रष्टाचार के जो मामले हैं उनकी पड़ताल करना। संसदीय समितियां ये सब काम करती हैं। 1983 में 1983 से भारत में संसद की जो स्थायी समितियां हैं उनकी प्रणाली विकसित की गई। विभिन्न विभागों से संबंधित ऐसी 20 समितियां हैं, 20 कमेटीज़ हैं। स्थायी समितियां जो विभिन्न विभागों के कामों को, उनके बजट, खर्चे और उनसे संबंधित जितने भी बिल हैं, विधेयक हैं, उनको वो देख रेख करती हैं। Apart from standing committees, the Joint Parliamentary Committee have also occupied a position of eminence in our country. Joint Parliamentary Committees (JPCs) can be set up for the purposes of discussing a particular bill, like the joint committees to discuss bill, or for the purposes of investigating financial irregularities. Members of these committees are selected from both houses. तो इसमें जो हमारी स्थायी समितियां हैं उनके अलावा जो स्थायी समितियां हैं, अपार्ट फ्रॉम स्टैंडिंग कमेटीज, जो स्थायी समितियां हैं उनके अलावा अपने देश में जो संयुक्त संसद समितियों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं,
लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। संयुक्त सदस्यीय समितियों का गठन किसी भी विधेयक पर इकट्ठे बैठ के संयुक्त जो चर्चा होती है अथवा वित्तीय यानी कि जितने मामले हैं उनमें इरेगुलरिटीज़ है, अनियमितताएँ हैं, उनकी जांच के लिए किया जा सकता है। तो ये बहुत सारे काम हैं जो स्थायी समितियों के अलावा जो संयुक्त संसदीय समिति हैं उनका जो महत्वपूर्ण स्थान है और उनके ये काम होते हैं। द कमेटी सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड द बर्डन on the parliament. Many important bills have been referred to committees. The parliament has merely approved the work done in the committees with few occasional alternations. Of course, legally speaking, no bill can become law and no budget will be sanctioned unless approved by the parliament, but the parliament rarely rejects the suggestions made by the committees. जो स्थायी समितियां हैं उस स्थायी समितियों के अलावा अपने देश में संयुक्त संसद की समितियों का भी बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। इन समितियों में जो संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, संयुक्त संसदीय समितियों का गठन किसी विधेयक के नाम पर संयुक्त रूप से चर्चा करना, उनकी वित्तीय अनियमितताओं की जांच करना, इसके लिए किया जाता है। तो समितियों की इस व्यवस्था ने संसद का कार्यभार जो हल्का कर दिया। दिस सिस्टम हैज़ रिड्यूस्ड द बर्डन ऑन द पार्लियामेंट। अनेक जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं उनको समितियों को भेजा गया है। संसद ने समितियों द्वारा किए गए काम में छिटपुट बदलाव करके उनको मंजूरी दे दी। एक कानूनी नज़रिए से देखें तो संसद की संसद की जो मंजूरी के बिना तो बजट पास हो सकते हैं, न तो के बिना जो बजट है वो पास हो सकता है और न ही कोई विधेयक का वो कानून बन सकता है। लेकिन यह बात भी सच है कि समितियों द्वारा दिए गए जितने भी सजेशंस हैं उनको संसद शायद ही कभी नामंजूर करे। ये बड़ी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है। As far as the nature of the legislature is concerned, it is such that there is restrictions only so far as procedures is concerned, but the substance there are no restrictions, no limitations on the sovereignty of the legislature or parliament. And we गाडगिल तो यहाँ पे इसने कहा है कि जहाँ तक विधायिका की प्रकृति का सवाल है, उसके नेचर का सवाल है, उसकी देखने प्रकृति है जो स्वभाव है उसका, तो उस पर कुछ प्रतिक्रिया बाधाएं देखो तो विधायिका पर कोई बाध्यता नहीं होती। संसद या फिर विधायिका हो उसकी संप्रभुता पर भी कोई खतरा नहीं होता, कोई उसके ऊपर सीमा नहीं है। ये चीज़ें हाउ डज़ द पार्लियामेंट्री रेगुलेट इटसेल्फ, किस प्रकार से जो संसद अपने आप को नियंत्रित करती है, पार्लियामेंट किस तरीके से अपने आप को रेगुलेट करती है। पार्लियामेंट एज मैंशनड अर्लियर इज़ ए डिबेटिंग फॉर्म। पार्लियामेंट क्या होती है? डिबेटिंग फॉर्म होती है, बहस करने के लिए एक मंच होती है। It is through debates that the parliament performs all its vital functions. ये केवल बहस ही होती है जिसके माध्यम से, जिसके जरिए संसद अपने सभी जरूरी काम उनको अंजाम देती है। Such discussions must be meaningful and orderly so that the function of the parliament are carried out smoothly and its dignity is intact. ये जो डिबेट है ये सार्थक होने चाहिए, अनुशासित ढंग से होना चाहिए, तभी संसद अच्छे से काम कर पाती है। इससे क्या होता है कि संसद की कार्रवाई वो आसानी से चलेगी, उसकी गरिमा बनी रहेगी। ये सारी की सारी चीज़ें जरूरी। द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ हैज़ मेड ए सर्टेन प्रोविजंस टू इंश्योर स्मूथ कंडक्ट ऑफ बिजनेस। द प्रेसिडाइजिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर इज फाइनल अथॉरिटी इन matters of regulating the business of the legislature। तो उसके काम के लिए, उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए ज़रूरी है। खुद संविधान में संसद की कार्रवाई को सही रूप से चलाने के लिए, उसको सुचारू ढंग से निर्वहन करने के लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। सदन का अध्यक्ष है जो विधायिका की कार्यवाही के मामले में वो
जो सबसे उच्च अधिकारी होते हैं वही उसका सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। सो द लॉ मेकर्स टू आर सब्जेक्ट टू सम लॉज। अरे तो कानून बनाने वालों को भी कुछ कानून लागू, हाँ बिल्कुल, कानून बनाने वालों पर भी तो कानून लागू होते हैं। ठीक है, लंदन एक ऐसा ही देश है, जो ब्रिटेन ऐसा ही देश है, वहाँ का संविधान पढ़िए आप कितना अच्छा है, वहीं से तो लिया है बहुत सारा हमने। वॉकआउट, ये क्या वॉकआउट नहीं, आउट किए गए हैं, तो ये देखिए क्या माजरा है। These MPs are not walking out, they are thrown out by the speaker. Do such tragic situations occur ever so frequently? यहाँ पे जो हैं ये सांसद निकले हुए हैं बाहर, जो कार्टून ये दिखाए गए हैं, ये वॉकआउट नहीं करे एक्चुअली, जो इन्होंने संसद की अनुशासनात्मक जो कार्रवाई चल रही थी वहाँ प्रक्रिया, उसमें इन्होंने विघन डाला और अनुशासन को मेंटेन करने के लिए स्पीकर ने इनको वहाँ से आउट कर दिया, भगा दिया। तो ऐसे सांसदों के प्रति ऐसा स्पीकर का एक पावर दी गई है उसको, ताकि संसद का सदन है जो अच्छे तरीके से चले, लोकसभा अच्छे से चलाई जा सके। देयर इज़ वन मोर वे इन विच प्रिसाइडिंग ऑफिशियल्स कंट्रोल द बिहेवियर ऑफ द मेंबर्स। यू मे हैव हर्ड अबाउट द एंटी डिफेक्शन लॉ। Most of the members of the legislature are elected on the ticket of some political party. What would happen if they decide to leave the party after getting elected? More many years after independence, this issue was unresolved. Finally, there was an agreement among the parties that a legislature who is elected on the party ticket must be restricted from defecting to another party. An amendment to the constitution was made, 52nd Amendment Act in 1985. This is known as Anti-Defection Amendment. It has also been subsequently modified by the 91st Amendment. The presiding officer of the House is the authority who takes final decision on all such cases. If it is proved that the member has defected, then such members loses the membership of the house. Besides, such a person is also disqualified from holding any political office like ministership etc. तो एक तरीके से जो सदन का अध्यक्ष अपने सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। अपने शायद दल बदल का एक कानून आया था, निरोधक कानून, उसके बारे में सुना होगा। जो विधायिका के अधिकतर सदस्य किसी न किसी दल के टिकट पर ही चुनाव लड़ते हैं और वो जीतते हैं। यदि चुने जाने के बाद भी अपनी पार्टी छोड़ना चाहे तो क्या हो जाएगा। स्वतंत्रता के काफ़ी समय बाद तक ये समस्या बनी रही और वो पार्टी छोड़ के जाते रहे इस तरीके से। तो यदि चुने जाने के बाद वो अपनी पार्टी ऐसे छोड़ते रहेंगे तो स्वतंत्रता के काफ़ी जो मायने वहाँ पे वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो स्वतंत्रता नहीं है, वो तो स्वतंत्रता की हत्या है। तो इस तरीके से दलों में इस बात पर आम सहमति बनी कि किसी दल के टिकट पर अगर कोई विधायक है वो निर्वाचित होता है और सांसद को दल बदल ऐसे करना होता है तो इसको रोका जाना चाहिए। इसके लिए उन्होंने क्या किया, 1985 में 1985 में संविधान का जो 52वां संशोधन किया, इसे दल बदल निरोधक कानून कहते हैं। इसको उन्होंने किया और इसको बाद में जो 51 में संवैधानिक संशोधन हुआ उसे दोबारा फिर संशोधित किया गया। सदन का अध्यक्ष दल बदल से संबंधित जितने भी विवाद हैं उन पर वो अपना अंतिम निर्णय देते हैं। यदि यह सिद्ध हो जाए कि किसी सदस्य ने दल बदल किया है तो उसकी सदन की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। इसके अलावा ऐसे दल बदलू को किसी भी राजनीतिक पद जैसे मंत्री वो पद उसको नहीं दिया जाता, अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। इसके लिए व्हाट इज़ डिफेक्शन, ये दल बदल क्या है, डिफेक्शन क्या है। If a member remains absent in the house when asked by the party leadership to remain present or votes against the instructions of the party or voluntarily leaves the membership of the party, it is deemed as defection.
तो दल बदल का मतलब है कि कई सदस्य अपने दल के नेतृत्व के आदेश के बावजूद भी सदन में उपस्थित न हो, दल के निर्देश के अनुसार कार्य न करे, वो उसके दल के निर्देश के अतिरिक्त दूसरे सदन में मतदान करें और अपनी स्वेच्छा से दल के सदस्य त्याग पत्र दें, तो उसे दल बदल कहते हैं भाई। Experience of the past 20 years shows that the anti-defection amendment has not been able to curb defections, but it has given additional powers to the party leadership and the presiding officials of the legislature over the members। लेकिन अगर देखे जाए ना अनुभव के तौर पर 20 साल का जो पिछला अनुभव रहा है उसमें दल बदल निरोधक कानून है जो इसने दल बदल को रोकने में सफल नहीं है। इसने किसी दल के प्रधान नेता अध्यक्षों को विधायिका के सदस्यों के विरुद्ध और ज़्यादा शक्तियाँ ही प्रदान की हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं इसमें दल बदल वो कानून जो अमेंडमेंट बनाए गए हैं वो इतने अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, वो सफल नहीं हो पाए। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या है? हैव यू वॉच्ड द लाइव टेलीकास्ट ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ द पार्लियामेंट, यू विल फाइंड द पार्लियामेंट इज ट्रूली a rainbow of colorful dresses symbolizing different religion in the country. Members speak different languages in the course of the proceedings. They come from various castes, religions and sects. They often fight bitterly, many times an impression is created that they are wasting the time and money of the nation. But we have seen in this chapter that these same parameters parliamentarians can effectively control the executive. They can express the interest of various sections of our society on account of its composition. Legislature is the most representative of all organs of government. The sheer presence of members of diverse social backgrounds make the legislature more representative and potentially more responsive to people's expectations. In a parliamentary democracy, legislature as a body of representing the wishes of the people occupies a high position of power and responsibility. Herein lies the democratic potential of the parliament. तो क्या आपने संसद की कार्यवाही को कभी देखो टेलीविज़न पर, अपनी आंखों से सीधा प्रसारण देखा हो? आपको सदन में इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगे बहुत सारी वेशभूषाएँ वो दिखाई देंगी जो देश के विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। सदन की कार्रवाई के दौरान सदस्य भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते हैं, वे अपनी जाति, धर्म और संप्रदायों से आते हैं, वे प्राय एक दूसरे का प्रबल विरोध करते हैं। अनेक अवसरों ऐसा देखा जाता है कि वे देश का समय और धन बर्बाद करते हैं। लेकिन आप इस अध्याय में ये आपने देखा कि यदि संसद कार्यपालिका को प्रभावी ढंग से नियंत्रित भी कर सकते हैं कि यही सांसद है जो ऐसा कर सकते हैं, वे हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के हितों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अपनी खास बनावट के कारण संसद सरकार के सभी अंगों में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्वता है। संसद में विभिन्न सामाजिक जो पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की मौजूदगी होती है, इससे संसद ज़्यादा प्रतिनिधिपरक होता है। इस कारण संसद जनता की इच्छाओं के अनुरूप चलती है और जनता की आकांक्षाओं के प्रति संवेदनशील होकर काम करती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने वाली यह विधायिका अत्यंत शक्तिशाली उत्तरदायी संस्था है। यही संसद की लोकतांत्रिक शक्ति का आधार है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। सो हियर आर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो ये क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं फर्स्ट सेकंड ये अपने नोटबुक में आप अटैम्प्ट करेंगे। साथ ही आपको इंटरनल क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। अगर इन क्वेश्चन आंसर को समझने में आपको दिक्कत आई है कोई ऐसी, तो मैं इनकी ट्रांसलेशन है वो आपके पास भेज दूंगा, तो उस ट्रांसलेशन से आप ऐसा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने 5 लेसन इस बुक के कर लिए हैं। सेकंड बुक है जो उसका हम कल से शुरू करेंगे। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। 5 लेसन है, फर्स्ट ये चेक करवाइए। 5 लेसन हम उस बुक से करेंगे, फिर उसके बाद आगे इसको वर्क को बढ़ाएंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू विद ग्रेट ट्रेजर ऑफ नॉलेज। और प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखें कि आप अपना काम जो निरंतर है वो चेक करवाएं, अपने टेस्ट
जो क्लास टेस्ट आपके होते हैं वो भेजें, उनको चेक करवाएं, अपनी परफॉर्मेंस देखें। अगर बेटा ऐसे ही चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे तो आप अपना 1 साल तो ऑब्वियसली बिल्कुल बर्बाद करेंगे, इस बात में कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ वैसे ही पास हो जाएंगे, ऐसी संभावना तो है नहीं कि आप किसी तरीके से अगले क्लास में बैठ जाओ। लेकिन एक बात यहाँ पे ज़रूर है कि 1 साल भर में जितने आपने खोया है ये 1 साल भर के लिए आपको मिलेगा। अगर आप 1 साल पहले नौकरी मिल जाए तो कितना है बेटा, कितना बड़ा नुकसान है आपका। अगर आप 1 साल की कीमत पूछना चाहते हैं तो फिर ओवरेज हो गए मान लीजिए नौकरी से, तब आप पछताएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, बड़े ध्यान से पढ़ें, बड़ी मेहनत से पढ़ें, अपने सभी टीचर से संपर्क बनाए रखें। मे गॉड सरस्वती ब्लेस यू। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।